हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर आपको भी सेम यही डाउट है कि सर हमारा रिलायंस जीसीएस का इंटरव्यू अच्छा हो गया है और क्या हमें प्रेसिडेंट राउंड के लिए जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। सेकंड ये कि सर क्या हमें रिलायंस जीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड ये कि सर ओरिएंटेशन में वी हर्ड अबाउट द बॉन्ड। बॉन्ड सुनने के बाद वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या हमें आगे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हमें रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं। अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग कैंडिडेट्स कॉल कर रहे हैं कि सर क्या सही रहेगा। फर्स्ट थिंग, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम डिकोडिंग एवरीथिंग फॉर यू। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मेरी इंटेंशन ये है कि जो बच्चे ज्वाइन करने जा रहे हैं उन्हें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए जिससे कि वो अपने करियर डिसीज़न को अच्छे से ले पाएँ और अपनी लाइफ में अच्छा करें। सेकंड, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू डिफेम रिलायंस ग्रुप एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप। I am just giving a fact based on my knowledge with precise and practical reason. So now in this video, I am going to give you some insights. First thing related to I am going to decode the bond. Second, schedule and shift culture. Third, salary. Fourth, defense like lifestyle. Fourth, fifth, career growth. Then defense aspirants point of view. Then lifestyle. Then government job preparation. Then regular degree. Then family obligation. Phone annual test and allowance. So basically, I just wrote 12 points for you, and step by step, I am going to decode this for you. And believe me, this video is going to be sufficient for you, and this will going to be give you a good idea whether you should join or not. So basically, this is a kind of help from my side, and I want you to share this to your friend who is or who also want to know the same, and like this, and make sure you connect to the channel for future updates. So now before starting this whole video and before starting decoding, I have an important announcement for you. See, after this GCS project, we are going to start a SSB guidance program led by Mr. Rudra Pratap Vats, Masters and PhD in Defense Studies, 3 time recommended, 2 times from Air Force Selection Board, 1 time from 20 SSB for NCC Special Entry, and mentoring for SSB interviews from last few years. And he also good experience and absolutely is a brilliant person. We can't reveal the identity because of the current employment status, and basically he is going to mentor you if you are going to prepare for SSB interview with our team. If you are really looking for the reliable source, and basically we started a batch for screening from 1st of June, from today, and the batch will start from every Monday. You can connect to me. I am sharing my number with you, and I hope this will also going to help you. So now starting with the first part, that is bond. Like what is bond and why is bond? So as I also belong to the law background and I pursued bachelor's of law in corporate law, I remembered one thing I want to share with you. Like if you are working in a somewhere in some organization, before going to work, if they are providing you a certain training and you just leave the organization after the training, then you are supposed to compensate the organization with the total budget of your training period. अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये है, इन शॉर्ट अगर आपको मैं एक लोकल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि देखो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, और काम करने से पहले अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेन करती है और उसमें वो आपके ऊपर, देखो डेफिनेटली ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेनिंग के लिए अकोमोडेशन होती है। ट्रेनिंग पे अगर आपको एक कॉस्ट कंपनी पे कर रही है और वो कॉस्ट ट्रेनिंग वहाँ से लेने के बाद, चीज़ें वहाँ से सीखने के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हो, मतलब जस्ट उसी मोमेंट पे उसे छोड़ देते हो सीखने के बाद, तो कंपनी के हाथ में क्या होती है। कंपनी मतलब ये कॉर्पोरेट लॉ है कि आपको जितनी कंपनी की कॉस्ट आई थी, आपको कंपनी को कंपनसेट करना होगा। ये एक लीगल वर्डिंग है। सेकंड ये है कि ये तो चलो कंपनसेट आपको करना है, और
इसमें साथ के साथ ये है कि अगर आप ऐसे बीच में छोड़ दोगे तो कंपनी आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देगी। ये कंपनी के हाथ में होता है, क्योंकि अगर आप कंपनी को एक लीगल तरीके से छोड़ रहे हो देन कंपनी विल प्रोवाइड यू एक्सपीरियंस लेटर, जिससे कि आपकी आगे इन केस अगर आप कंपनी स्विच करोगे तो भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ रहे हो, मतलब इलीगल तरीके से अगर आप छोड़ रहे हो, तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा जिसमें ये मेंशन हो कि हाँ आपने यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की है। अब देखो, आप थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ रिलायंस ग्रुप नहीं, इवन आप किसी गवर्नमेंट अकेडमी को भी देखोगे, जैसे कि आप एज्यूम कर सकते हो नेशनल डिफेंस अकेडमी। इवन देखो, देयर इज़ नो सच कंपैरिजन, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी भी ट्रेनिंग अगर कोई कैंडिडेट बीच में ड्रॉप करता है तो उसे एक अमाउंट पे करना होता है। ऐसे OTA के लिए भी पे करना होता है। हर एक गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये सेम रूल है, क्योंकि वो भी चाहते हैं अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऐसे कैंडिडेट पे वो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते जिससे कि वो आगे छोड़ के चला जाए। अगर वो आगे छोड़ के चला जाएगा तो उनके रिसोर्सेज की वेस्टेज है। सो दिस इज़ प्योरली लीगल एंड दिस इज़ प्योरली ओके। बॉन्ड होता ही होता है, और उन्होंने 5 साल का बॉन्ड रख दिया है, और 5 साल के बॉन्ड में आपको सर्टेन अमाउंट देना होता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि देखो, इन केस अगर आप कोई किसी गवर्नमेंट A ग्रेड या B ग्रेड किसी अच्छी जगह अगर आप सेटल हो जाते हो, नाउ दिस अमाउंट इज़ ह्यूज, आई नो, बट द मोमेंट यू क्वालिफाइड फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम देन एंड you are supposed to get a good exposure, then this amount is not such big. अगर आपको कोई A ग्रेड B ग्रेड या कोई एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब अगर आपको ऑफर होती है जो आपकी द यू पैशनेट अबाउट, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कि उस टाइम पे करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और इवन यू कैन just lend some money from someone and then you can also fill the bond. तो देखो, बॉन्ड मुझे तो नहीं लगता कि बॉन्ड में कोई दिक्कत है। ये कंपनी के राइट हैं, और हर कंपनी के राइट हैं, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपको, मैं तो वही बोलूँगा कि अगर आपकी कोई एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो चुका है, सारी स्टेज क्वालिफाई हो चुकी हैं, मेडिकल वगैरह भी हो चुका है, आप प्रीटी एंड यू आर प्रीटी श्योर अबाउट द जॉइनिंग, आपको ये लगता है कि आप मेरिट में आ जाओगे, तो देन गो फॉर इट। और देखो, कुछ हैं जो जज करेंगे, लेकिन बात ये है कि इसका मतलब अगर आप जज कर रहे हो, या तो आपका लेवल उससे नीचे है या फिर आपका उससे लेवल ऊपर है। अगर ऊपर है तो फिर और अच्छी जगह आप सेटल हो जाओ, ठीक है, और अगर नीचे है तो फिर जो नीचे की जॉब्स हैं आप उन्हें टारगेट करो। तो देखो, इनका वैसे अच्छा है, अच्छी अकोमोडेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, और देखो ट्रेनिंग पे भी आपको पे कर रहे हैं। बात ये, क्योंकि आप देखो कि आज के टाइम पे इवन इफ़ यू परस्यूड BTech CS AI, अगर आपने BTech कंप्यूटर साइंस AI से भी कर लिया है, उसके बावजूद भी आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने के लिए जाते हो, तो वो भी अनपेड हो जाती हैं बहुत जगह। ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात हैं। इवन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दिल्ली NCR, इस तरीके के भी हालात हैं। तो इस तरीके की सोसाइटी में अगर एक अनस्किल्ड कैंडिडेट को एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग दे रही है, साथ के साथ उसके लिए भी पे कर रही है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। Second, schedule or shift system. So I want to take a reference, like a YouTube channel, Moon Banerjee. He decoded the schedule and shift culture. उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि कैसे कैसे वर्किंग शिफ्ट हैं और कैसे कैसी शिफ्ट्स आगे पीछे होती हैं। तो देखो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ बिट हेक्टिक। ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मे भी अगर आपको 2-3 घंटे आपको मिल भी जाएँ, इन केस अगर आपको मिल भी जाएँ, प्रॉब्लम ये होती है जब हमारी स्लीप साइकिल अगर हमारी हैम्पर हो जाती है तो हमारी बॉडी को उस हिसाब से रेस्ट नहीं मिल पाता, इसलिए मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी काम नहीं कर पाती। दिस इज़ ऑल्सो रीज़न। बाकी जिसको करना होता है वो कहीं पे भी कर लेता है, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। आप अगर ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो हो भी सकता है, बट देखो एवरेज बच्चा तो नहीं कर पाएगा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज माइंड, क्योंकि टाइम थोड़ा आपके पास कम होगा, पर्सनल लाइफ भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना काफ़ी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हेक्टिक हो जाता है। और देखो, दे आर पेइंग फॉर यू, अब वो आपको शिफ्ट के लिए ही आपको पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। थर्ड, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे ये डाउट है कि सर क्या कहते हैं, LPA में सैलरी अलग होती है और इन हैंड सैलरी अलग आती है।
तो भाई इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप AI पे जाओ, AI पे लिखो आप रिलायंस GCS ग्रुप, उसमें लिखो कि आई अप्लाइड फॉर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जॉब इन GCS और उनकी LPA इतनी है, हम हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट इन हैंड। तो उसमें एक बेसिक डिडक्शन जो एज़ पर कंपनी लॉ आपके टैक्स वगैरह जो थोड़ा बहुत लगता है, जो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो आपको ग्रोथ सैलरी आपको एक रफली एस्टिमेट बता देंगे। क्योंकि देखो, हु आई एम टू रिवील एंड हु आई एम टू कंक्लूड, मैं आपको डायरेक्ट सैलरी ऐसे कैसे बता सकता हूँ। और वो आपको जो है या तो HR बताएंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, लेकिन एक रफली एस्टिमेट के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। ये प्रॉम्प्ट आप AI को लिखना, AI और बाकी ग्रुप से कंपेयर करके एक डिसेंट आपको रफली अमाउंट बता देगा। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसे सैलरी कम लगेगी। इन केस अगर आपको सैलरी कम लग रही है और कहीं अगर आपको ज़्यादा मिल रही है, तो भाई वहाँ जाओ, आपके लिए है ही नहीं, आपने इसमें अप्लाई क्यों किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें अभी हमें कहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, जो चीज़ें थोड़ी कम हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते और उधर हम जानना प्रेफर नहीं करते। और मतलब ये चीज़ें होती है कि बड़ी चीज़ें मिलती नहीं हैं और जो छोटी चीज़ें उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड हैव अ गुड रिसोर्स प्लानिंग, दिस इज़ ऑल्सो एन गुड अपॉर्चुनिटी। और आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी पीक पे है, और उसके स्टिल अगर कोई फॉर्चून 500 कंपनी अगर आपको ऑफ़र कर रही है, तो और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, यू क्वालिफाइड फॉर इट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब देखो सैलरी कम, हाँ देखो सैलरी में एक और चीज़ है, देखो मेट्रो सिटी में आपको रहना है, गुजरात, मुंबई और इस एरिया में, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी एक्सपेंसिव एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिटीज़ होती हैं, ये मेट्रो सिटीज़ हैं, यू नीड टू मैनेज। और देखो, आप अगर इसे जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे ना, तो मे बी आप इसमें बहुत सी चीज़ें कमियां निकालने लगो, बट द मेन थिंग, आप इसे देखो इस तरीके से कि यार पहले आप खुद को एक लर्निंग फेज में गेस करो, कि आप ये मान लो कि पहले 1 साल मेरा लर्निंग फेज है, देन आई विल काउंट द सैलरी एंड अलाउंस एंड ऑल, इवन अलाउंस आर ऑल्सो गुड। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द फोर्थ पॉइंट। ओके, सीरीज से चल रहे हैं, पूरा एक एक स्टेप मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ, और बिलीव मी, ये ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और पे मिलेगी भी नहीं। आई एम पुटिंग एफर्ट फॉर यू एंड आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप इसे 2x पे करके जल्दी जल्दी देख सकते हो। फोर्थ आ गया डिफेंस लाइक लाइफस्टाइल। बहुत सारे मिथ हैं कि ये डिफेंस लाइक लाइफस्टाइल होता है। देखो, इसमें मैं बताता हूँ कि इनका जो स्टाफ होता है, जो आपको ट्रेन करते हैं या फिर जो आपको गाइड करते हैं, वो इस फील्ड में आपको रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें वेल सिस्टमेटिक हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। और इवन इफ़ यू आर SSB एस्पिरेंट, अगर आप SSB डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं अब ये बोलूँगा कि देखो, अगर आप कंटिन्यूस स्क्रीन आउट हो रहे हो तो आप डेफिनेटली आ जाओ। अगर आप रिपीटर हो तो भी आप चले जाओ, क्योंकि वहाँ आप जाओगे, आपको एक एटमॉस्फेयर इतना अच्छा मिलेगा कि आपके जो दोस्त बनेंगे वो भी कुछ प्रीवियसली रिकमेंडेड होंगे, कुछ मतलब SSB फील्ड में उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, तो वो आपको गाइड भी कर पाएंगे। मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो आपकी हेल्प भी करेंगे SSB में भी। और उसके बाद ये है कि देखो लाइफस्टाइल को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल को डिफेंस से कंपेयर मत करो, क्योंकि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी चीज़ें आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। डिफेंस इज इटसेल्फ अ डिफरेंट एंड यूनिक थिंग। डिफेंस होल्ड रिस्पेक्ट एंड प्राइड, एंड रिस्पेक्ट एंड प्राइड इज अनवैल्यूएबल, यू कांट वैल्यू और यू कांट कंपेयर, उसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, करियर ग्रोथ। देखो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो, नाउ द थिंग इज सिंपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, योर करियर स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन योर वर्क। आप जितना अच्छा काम करते हो उतनी ज़्यादा आपकी करियर छोटी है। जिस दिन आप काम घटिया करने लगोगे, आप सीरियस नहीं रहोगे, उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कि जो इन केस अगर आपकी नेग्लिजेंसी भी है तो भी आपको वो पे करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत में देखा होगा, वो अपना काम करते ही नहीं है। बैंक में अगर आप जाके देखोगे, तो बैंक में आप देखोगे उनकी प्रिंटिंग मशीन काम नहीं कर रही है, वो प्रिंट करके ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा पिछले कई साल, 3-4 सालों से चल रहा है, बट स्टिल वो अपनी गवर्नमेंट जॉब पे हैं,
वो उन्हें कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे स्कूल्स में, और क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं कि 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, वो कुछ एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहे। तो ऐसे हालात हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी 100% है। बट प्राइवेट में हाई एंड फायर पॉलिसी होती है, अगर जितना अच्छा आप काम करते हो उतना आपकी वैल्यू होगी, और ये अच्छी भी बात है क्योंकि इसमें चीज़ें मेरिट बेस हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स भी होती है, पॉलिटिक्स तो देखो हर जगह है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, रिजर्वेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्राइवेट में एज बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी आप उतना अच्छा, आज जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको मिल जाता है। तो करियर ग्रोथ देखो अच्छी है, 5 साल का बॉन्ड है, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप स्विच करोगे इन केस, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में कोई भी लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कम ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, क्योंकि सबको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक करियर अच्छी ग्रोथ चाहिए। तो कुछ फ़ॉरन स्विच करते हैं, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करते हैं जहाँ उन्हें अच्छा खासा पे मिलता है। तो इट डिपेंड ऑन यू, आप इन केस रिलायंस में करना चाहोगे, अगर रिलायंस आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देगी तो रिलायंस में करना, अगर कोई और अच्छा आपको ऑफर करेगा तो 5 साल बाद आप वहाँ पे करना। यू हैव विल, यू हैव फ्री विल। करियर ग्रोथ आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए क्या है। देखो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएसबी के प्रोस्पेक्ट से तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपने CDSF कैट कोस्ट गार्ड कोई भी रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया है, आपकी रिटर्न की ही प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी आप ग्राउंड लेवल पे हो और आप सोच रहे हो कि आप ज्वाइन करने के बाद अंदर जाके वहीं पे प्रिपरेशन कर लोगे, वहीं पे ही आप एसएसबी अटैम्प्ट कर लोगे, वहीं से ही आप मेरिट इन होकर अकेडमी चले जाओगे, देन दिस इज़ बिट इल्यूजन। ये थोड़ा टाइम टेकिंग और कॉम्प्लेक्स होगा। देखो ये अगर आपकी विल अच्छी है, डिटर्मिनेशन अच्छी है, तो फिर तो आप कर लोगे, अगर आप सच में मेहनती हो तो। बाकी ये है कि डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ स्टाइल और नेट सेविंग। लाइफ स्टाइल, डिसेंट लाइफ स्टाइल मिलेगा आपको, और देखो जैसा आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है रिक्रूटमेंट के टाइम, डोंट एक्सपेक्ट कि पूरी लाइफ आगे इसी तरीके की होगी लग्जरी, क्योंकि इसमें ग्राउंड ड्यूटी होती है, फील्ड ड्यूटी होती है, तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड मैं आपको ये बोलूँगा कि लाइफस्टाइल के लिए तो भाई डिसेंट अबव एवरेज आपको लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा, अकोमोडेशन, फूड वगैरह सारी चीज़ें। और हाँ, फूड के लिए आपको पे करना होता है, यू आर सपोज टू पे फॉर फूड इन ट्रेनिंग पीरियड, एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो देखो मेट्रो सिटी में अगर आप काम कर रहे हो तो नेट सेविंग तो आपकी काफ़ी कम होगी, आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि मेट्रो सिटी में एक्सपेंसिव होती है। उसके अलावा अगर आपको, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो सच में हेक्टिक होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में किसी और जॉब की प्रिपरेशन करना, किसी हायर अच्छे पोस्ट के लिए आप अगर जानना चाहते हो, डेडिकेटेड CS UPSC या SSC CGL इस टाइप के अगर कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, और अगर आप अभी ज़ीरो पे हो तो उसमें इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। कम से कम भी आपको 5 से 6 घंटे की सीरियस सिटिंग चाहिए कि प्रॉपर मेंटल रेस्ट, लेकिन जो कि यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो या तो पीक डेडिकेशन डिटर्मिनेशन हो तो कर लोगे, बाकी मुश्किल ही होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। और रहा सा फिर आपका बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड भी आपको पे करना होगा अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो। नाउ द मेन थिंग, क्या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम सारे दे पाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपकी लिमिटेड ऑफ होंगे। क्वेश्चन है कि क्या सर SSB दे पाएंगे, SSB तो दे पाओगे, बाकी ये है कि लिमिटेड होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेके फिर जाना होगा, तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बिट कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी, कुछ बच्चे होते हैं टेक साइड से हैं और उनकी 2 टेक एंट्री आ गई, 2 NCC एंट्री आ गई, 2 ये आ गई, 2 वो आ गई, और आप सोच रहे हो कि आप एक साल में 10-12 क्या कहते हैं, सॉरी 5-6 SSB एंट्री दे आओगे, ये आपको एक एक महीने का ऑफ दे देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे। मतलब आप समझ रहे होगे कि लिमिटेड छुट्टी होती है, उसमें अगर आप एडजस्ट हो पाते हो तो फिर हो जाएगा, वरना फिर ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा एग्ज़ाम है और आप चले जाओगे। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो 6 महीने में से 1-2 महीने तो बच्चे गायब भी हो जाएंगे, और फिर वो सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। फॉर्मल प्रोसेस है, लिमिटेड छुट्टियाँ हैं और उसको आपको यूटिलाइज़ करना होगा।
उसके अलावा ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन उनकी हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर से कर रहे हैं। तो भाई अगर आप रेगुलर से कर रहे हो तो रेगुलर से डिग्री के लिए नहीं आपको अप्रूव मिलेगा, क्योंकि रेगुलर की डिग्री अगर आप कर रहे हो तो आपको एनओसी चाहिएगा कॉलेज से, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, क्योंकि एक जगह आप एक टाइम पे आप दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए रेगुलर से डिग्री अगर आपकी है, आइदर यू आर सपोज टू ड्रॉप द डिग्री और योर सेकंड दिस जॉइनिंग। उसके बाद फैमिली ओब्लिगेशन होती है, फैमिली लाइफ होती है। फैमिली लाइफ मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग एंड यू आर रशिंग टुवर्ड मनी, बट आफ्टर हैविंग मनी यू विल फाइनलाइज लाइक फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यू आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स फॉर फैमिली। फैमिली ओब्लिगेशन होगी कि फैमिली से इतनी दूर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या ये वर्थ इट होगा? तो बात ये है, मैं आपको एक एस्टिमेट दूंगा कि अगर आप अपने होम टाउन में रह के 9 to 5 जॉब करके या फिर कोई भी जॉब करके जिसमें आप इवनिंग में अपने घर आ जाते हो, अगर आप किसी ऐसी जॉब पे करते हो और आपकी सैलरी 28,000 से ज़्यादा है, देन आपको शायद वहीं पे ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बेशक पैसे थोड़े कम होंगे लेकिन फैमिली लाइफ मैनेज हो जाएगी। ये आपका सही रहेगा। देखो ये सिर्फ सजेशन है, ओके। उसके बाद की फ़ोन, सोशल मीडिया, एनुअल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं फिज़िकल के लिए भी, और ट्रेनिंग के बाद आपका एक और टेस्ट होगा, और जो क्वालिफाई करेंगे फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे उन्हें, वरना फिर उनकी कुछ टर्म एंड पॉलिसीज़ होती हैं। तो देखो ये चीज़ है कि वर्किंग शिफ्ट में तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलो नहीं करेगी कि आपकी वर्किंग शिफ्ट है और आप फ़ोन पे लगे हुए हो। तो वर्किंग आवर्स में तो आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, और मतलब अगर आपको कुछ सच में ही काम है तो अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग आ रहे हैं आपके और आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और अपना फ्री हो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अलावेंस देखो, मेडिकल अलावेंस अच्छी, देखो रिलायंस की मैं एक बात बताता हूँ, ये सबसे सूटेबल इसीलिए है क्योंकि ये रिलायंस इज़ गुड इन टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर फैमिली। तो अलावेंस की तरफ से आप फ्री हो जाओ, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे अलावेंस पे करेगी। इवन आपको इन्होंने बता भी दिया होगा, इंसेंटिव्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छी है। अगर अनएम्प्लॉयड हो तो ज़रूर ज्वाइन करो। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई प्री क्वालिफाई किया है, रिटन गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किए हैं तो, और आपकी एज 23 है, तो हैव सम पेशेंस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ही दोबारा हिट करो। और अगर आपकी एज 24 25 क्रॉस हो चुकी है, अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, देन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। बाकी एक और बात है, ये एंड में सबसे इम्पोर्टेंट है, और आई होप अगर आप एंड तक आ चुके होगे तो ये आप सुन पाओगे कि गवर्नमेंट होती है, प्रेफर करो अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा पाओ, इवन एट एनी पे स्केल, क्योंकि गवर्नमेंट में सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड यू सम डिग्निटी, उसमें प्राइवेट में आप में की डिपेंडेंसी होती है ऊपर हायर की जो रैंक्स होते हैं उन पे, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि आपका हाथ से ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसमें थोड़ी एक डेजिग्नेशन की डिग्निटी बन पाती है। बाकी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ बेस्ट कंपनी, और काफ़ी लीगल ब्रांच भी एक्टिव है, हर एक चीज़ एक्टिव है इनकी, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। एंड आई होप द नॉलेज आई शेयर्ड विद यू इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर इसमें सीरीज़ में पूरी वीडियो में अगर आपको किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्शन है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब इसमें काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी अगर इस चीज़ से कुछ कोई प्रॉब्लम है, मेरी किसी वर्डिंग से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मेल लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आप उसे बता दो इन अ फॉर्मल टोन, काइंडली मेंटेन डेकोरम। और अगर आपको कोई ऐसी ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बता देना, आई विल डिलीट द पर्टिकुलर क्लिप इफ़ आई फाउंड यू आर प्रैक्टिकल एंड सुटेबल। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, एंड आप बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो आई कैन शेयर विद यू। थैंक यू।